Hello student, good morning. Today we will study Vista's fourth chapter, The Enemy, which is written by Pulse as Buck. In first part we had studied that there is a story of Dr. Sadao. Dr. Sadao who is living on the coast of Japan. As a profession he is a doctor, and this lesson is set during the World War. So there was struggling between two countries, America and Japan. Many countries had participated in the World War. Dr. Sadao, who was a surgeon and scientist, he had fallen in love with Hannah in America. Dr. Sadao had completed his study in America, and here Hannah and Dr. Sadao met there at the Professor Harley's home. They returned to Japan and got married until Sadao's father accepted their relationship. When Sadao's father ensured that Hannah is of Japanese and from pure race, he accepted their relationship, and after that they got married. Years and years passed, but the relationship is as fresh as they got married. उसके रिलेशनशिप जो थे हना और डॉक्टर सदाओ की इतने ही फ्रेश थे. वन डे दे शो अ मैन. उसने एक दिन देखा कि एक मैन जो है वो क्रोलिंग करता हुआ बीच पर वो वहाँ पर सैंड पर गिर जाता है. दैट टाइम इट वॉज मिस्ड. पूरा मिस्ट से कवर था, इसलिए इट वॉज नॉट पॉसिबल टू सीन दैट मैन क्लियरली. सो यहाँ पर वो मैन आता है, क्रोलिंग करते करते गिर जाता है. ही वॉज अनकॉन्शियस एंड इंजर्ड. नाउ लेट्स स्टडी द रिमेन पार्ट ऑफ दिस chapter. A fisherman, perhaps, Sadao said. Sadao assumed that maybe or perhaps a fisherman washed from his boat. He ran quickly down the steps, and behind him Hannah came. He went there, and behind him Hannah also pursued him, her wide sleeves flying. And here, as I shown you the picture in the first part, the Japanese cloth and her white sleeves flying. A mile or two away on either side there were fisher villages, but there was only the bare and lonely coast, dangerous with rock. पास में 2-3 विलेजेस थे जिसमें फिशरमैन रहते थे, बट द प्लेस वेयर सदाओ लिव्ड इज कवर्ड विथ रॉक्स एंड विच इज़ क्वाइट डेंजरस प्लेस. और पूरा वहाँ पर पाइन ट्री से कवर किया हुआ प्लेस था. सो इट इज़ अ डेंजरस कोस्ट. द सर्फ बियॉन्ड द बीच वॉज स्पाइक्ड विथ रॉक्स. समहाउ द मैन हैड मैनेज्ड टू कम थ्रू देम. ही मस्ट बी बैडली टोर्न. वो बहुत ही बैडली इंजर्ड भी हुआ होगा, क्योंकि वो जो कोस्ट था पूरा रॉकी था, पत्थर से भरा हुआ था, और वो इंसान ने कैसे करके मैनेज किया होगा कोस्ट पर पहुंचने के लिए. इसलिए वो रॉक से और वहाँ पर जो पत्थर से उससे इंजर्ड भी हुआ होगा. इन दिस वे हैना एंड डॉक्टर सदाओ reached to him. He is wounded. He was injured, Sadao exclaimed. He made haste to the man who lay motionless, and that man was motionless. उसमें कोई movement नहीं थी. He was unconscious, his face in the sand. And as he was crawling, he fell, and his face fell on the sand. तो उल्टा वो लेट रहा था, उसका जो मुंह था वो सैंड की तरफ था. An old cape stuck to his head, soaked with sea water. और जो उसने वो हेड पर वो कैप पहनी थी वो भी गीली थी, और वो भी सैंड से पूरी कवर हो गई थी. He was in wet rags of garments, and his garments were also wet. और टूटे हुए थे कपड़े. Sadao stopped. Hannah at his side and turned the man's head. They saw the man, a white man, Hannah whispered. When they turned that man, who was motionless, who was unconscious, उसको टर्न किया, तब पता चला, उसका जब चेहरा देखा तब पता चला a man was white man, यानी कि वो एक अमेरिकन मैन था. Yes, it was a white man.
The wet cap fell away, and there was his wet yellow hair, long as though for many weeks it had not been cut, and upon his young and tortured face was a rough yellow beard. He was unconscious and knew nothing that they did for him. दिस इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ मैन. क्या था तो उसके स्किन का कलर, उसके येलो हेयर थे और कितने दिनों से उसके जो हेयर है वो नॉट हैड बीन कट, एंड देर वर मेनी स्कार्स ऑन हिज फेस, many cuts on his face. It means that his face was tortured and his beard was long. उसकी जो दाढ़ी है वो भी बढ़ गई थी. He was unconscious. At that time that man was unconscious and knew nothing. उसको पता भी नहीं है. They did for him. That man was unconscious and he did not know anything that Hannah and Sadao did for him. सो यहाँ तक तुमको पता है कि हन्ना एंड सदाओ हस्बैंड एंड वाइफ वेयर दे आर लिविंग, और उसने एक इंसान को देखा, वहाँ पर गए. ही वॉज अ वाइट मैन एंड ही वॉज टॉर्चर्ड, अनकॉन्शियस, मोशनलेस, लाइंग ऑन द सैंड. नाउ व्हाट विल दे डू, क्या वो करेंगे. ही वॉज वाइट मैन मीन्स एनिमी ऑफ जापान, और ये मैन तो टॉर्चर था. तो उसके लिए ये दोनों क्या करेंगे, उसकी जान बचाएंगे एज अ ह्यूमन बीइंग, और एज अ पेट्रोइड्स उसको वो पुलिस को दे देंगे. नाउ सदाओ रिमेंबर्ड द वाउंड एंड विथ हिज एक्सपर्ट फिंगर्स ही बिगेन टू सर्च फॉर इट एज ही वॉज सर्जन, और वो साइंटिस्ट भी था. नाउ ही रिमेंबर द वाउंड्स, अब उसको वो घाव जो है वो याद आने लगे. दैट इज़ वाई उसने वहाँ पर वो फिंगर से सर्च करना शुरू किया. ब्लड फ्लोड फ्रेशली एट हिज टच, और जो ब्लड फ्लो कर रहा था इट वॉज फ्रेश. ऑन द राइट साइड ऑफ हिज लोअर बैक सदाओ शो दैट अ गन वाउंड हैड बीन रीओपन्ड, और जो घाव था वो भी अभी रीओपन्ड था. किसका घाव था, तो गन लगी थी. वेयर इट वॉज ऑन द राइट साइड ऑफ लोअर बैक. द फ्लैश वॉज ब्लैकन्ड विथ पाउडर, और जो फ्लेश था, मांस का टुकड़ा वहाँ से निकला हुआ था, वो काला हो गया था गन के पाउडर से. समटाइम्स नॉट मेनी डेज अगो द मैन हैड बीन शॉट हैड नॉट बीन टेंडेड. इट वॉज बैड चांस दैट द रॉक हैड स्ट्रक द वाउंड. कुछ दिन भी नहीं हुए थे ये गन को उसको इंजर्ड हुए. Here the word tended means look after. That man was not look after. He had shot by the gun. And also one thing is that when he escaped, तो वहाँ से वो रॉक के साथ स्ट्रक हुआ होगा, और उसका जो घाव था इट वॉज बैडली इंजर्ड, रॉक से भी इंजर्ड हो गया. Oh, how he is bleeding, Hannah whispered again in a solemn voice. It means that she doesn't want to tell anything to Sadao, and that is why she whispered. The mist screened them now completely, and at this time of day no one came by. And here there was mist covered the whole island, and they knew that no one will come there. The fishermen had gone home, and even the chance beachcombers would have considered the day at the end, and it was the end of the day. So here फिशरमैन्स ऑलरेडी गॉन. सो बीच कॉम्बर्स जो बीच पर कोई घूमने आते वो भी वहाँ पर कोई आएगा नहीं. दे वर श्योर, सदाओ हैना वर श्योर दैट नो वन विल विजिट द आइलैंड्स. बीच कॉम्बर मीन्स वेग्रेंट लिविंग ऑन बीच. सो हियर they were sure, Sadao and Hannah were sure that no one will visit the island that time. So they have a chance to save that man. What shall we do with this man? Sadao muttered. Muttered means speak softly. But his trained hands seemed of their own will to be doing what they could do, stanch the fearful bleeding. He packed the wound with the sea, most strewed the beach. The man moaned with pain in stupor, but he did not awaken. But his trained hands
ट्रेन हैंड्स, हुज ट्रेन हैंड्स, सदाओस ट्रेन हैंड, ट्रेन मतलब उसने जो डॉक्टरी की थी, सर्जन किया था, उसके जो हाथ थे, सीम्ड यानी ये दिखा रहे थे, सीम्ड ऑफ देयर ओन, खुद ब खुद, विल टू बी डूइंग वॉट दे कुड डू, स्टेंच द फियरफुल ब्लीडिंग, स्टेंच मीन्स स्टॉप द फ्लो ऑफ लिक्विड, जो लिक्विड जो ब्लीडिंग हो रही थी उस पर हाथ जो है वो अटके हुए थे ताकि ज़्यादा ब्लीड ना हो। ही पैक द वाउंड, उसने वो वाउंड था, घाव था, वो भर दिया। ही पैक द वाउंड विद द सी मोस, वो एक सी मोस आता है वहाँ पर, वो जो एक समुद्र के वहाँ पर एक थोड़ा सा पौधा आता है, उससे उसने घाव भर दिया। You can see in picture, this is sea moss, and with the help of these, Sadao packed the wounds. यहाँ पर एक वर्ड स्ट्रूड, स्ट्रूड मीन डिस्पर्ड. सो द मैन moaned with pain in his stupor, but he did not awaken. Moaned, M-O-A-N-E-D, moan means वो जो बड़बड़ाना, जब कभी इंसान बीमार होता है तो बड़बड़ाता है. सो दैट मैन moan with pain in his stupor. Stupor means distress, but he did not awaken. He was unconscious. Now there was a question that what shall they do with that man? The best thing that we could do would be to put him back in the sea, Sadao said, answering himself. And here he answering himself. पहले पूछता है कि वो क्या करेगा. He muttered, what shall we do? पहले ही वो मटर करता है कि हम क्या करेंगे, फिर अपने आप को ये आंसर देता है, इट इज़ बेस्ट वे टू पुट दैट मैन बैक इन टू द सी, कि वापस उसको दरिया में फेंक दिए. नाउ दैट द ब्लीडिंग वॉज स्टॉप्ड फॉर द मोमेंट, ही स्टूड अप एंड डस्टेड द सैंड फ्रॉम हिज हैंड्स. ही फाउंड दैट द ब्लीड स्टॉप्ड, उसने देखा कि ब्लीड तो वो स्टॉप हो गया है. अब वो खड़ा रहा और अपने आप को अनडस्ट करता है, जो सैंड अपने हाथ पर लगी थी उसको वो निकाल देता है. यस, अनडाउटेबली दैट वुड बी बेस्ट, हैना सेड स्टीडीली. और हैना भी स्टीडीली बता देती है जल्दी कि यस, इट इज़ द गुड आइडिया, इट इज़ बेटर टू पुट दैट मैन बैक इन टू द वाटर, इन टू द सी. बट सी कंटिन्यूड टू स्टेयर डाउन एट द मोशनलेस मैन. फिर भी वो इंसान को देखती रही जो मोशनलेस होकर सैंड पर पड़ा था. इफ़ वी शेल्टर्ड अ वाइट मैन इन अवर हाउस वी शुड बी अरेस्टेड, एंड इफ़ वी टर्न हिम ओवर एज अ प्रिजनर ही वुड सर्टेनली डाई, सदाओ सेड. नाउ टू ऑप्शंस आर देयर. इफ़ दे विल शेल्टर्ड, उसको शेल्टर करेंगे, घर में आसरा देंगे, दे माइट बी अरेस्टेड, वो अरेस्ट हो जाएंगे. और अगर वो प्रिजनर एज अ प्रिजनर उसको वापस दे देंगे, कि पुलिस को वो वापस देंगे, ही वुड सर्टेनली डाई, वहाँ पर उसकी केयर होगी नहीं. और ये अमेरिकन मैन है, वॉट एवर वाइट मैन है, वो मर जाएगा. अगर वो शेल्टर देते तो वो अरेस्ट होते, अगर वो पुलिस को दे देंगे तो वो सोल्जर, वो वाइट मैन मर जाएगा. द काइंडेस्ट थिंग वुड बी टू पुट हिम बैक इन टू द सी, हना शेड. और हना भी कह दी थी दैट इज़ द काइंडेस्ट, यही एक अच्छी बात है कि उसको वापस सी में डाल देते हैं. बट नीदर ऑफ देम मूव्ड, लेकिन दोनों हिले, ना तो सदाओ हिला और ना तो हना. They were staring with the curious repulsion upon the insult figure. They were, Hannah and Dr. Sadao, staring मतलब घूरते रहे, with curious repulsion. Repulsion means repel. Inert means inactive. They both staring that man who was inactive. What is he? Hannah whispered. कौन है ये? There is something about him that looks American, Sadao said. Sadao assumed कि ये कोई अमेरिकन हो सकता है. He took up the battered cape. Battered means टूटी हुई, torn cape. Yes, there, almost gone, was the faint lettering. A sailor, he said, from an American warship. He spelled it out. U.S. Navy. The man was a prisoner of war. Or on that cape it was written US
नेवी। उस पर जो स्पेल किया हुआ था उसने रीड किया, उसमें था उसके पर लिखा था यूएस नेवी। एंड सदाओ ने कहा कि ये कोई अमेरिकन सोल्जर है और ये जो है प्रिजनर है, प्रिजनर ऑफ वॉर, वो जेल का एक कैदी भी है। येस देयर ऑलमोस्ट गॉन वॉज द फेंट लेटरिंग। वो जो लेटर थे वो थोड़े बहुत निकल गए थे, फिर भी उसने ट्राई किया रीड करने का, जिस पर लिखा था यूएस नेवी। ही हैज़ एस्केप्ड, हना क्राइड सॉफ्टली, एंड दैट इज वाई इज वाउंडेड। In the back, Sadao agreed. Hannah said that man escaped and wounded. Sadao agreed with Hannah. Now it is sure that the man was American and a prisoner of war. They hesitated, looking at each other. Then Hannah said with resolution, अब solution देते हुए कहा कि इसको हम are we able to put him back into the sea? कि क्या ये दोनों उसको सी में वापस फेंकने के लिए एबल है, क्योंकि अब तो वो प्रूफ हो गया था कि वो जो इंसान था वो अमेरिकन सोल्जर था एंड ही वॉज द प्रिजनर ऑफ द वॉर, सो इट इज़ नॉट गुड टू शेल्टर हिम। अच्छी बात नहीं कि उसको सहारा दे। इफ आई एम एबल आर यू, सदाओ आस्क्ड। नो, हना सेड, बट यू, इफ यू कैन डू इट अलोन, अगर आप उसको अकेले फेंक सकते हो तो। सदाओ हेजिटेटेड अगेन, उसको थोड़ा हेजिटेट होता है। द स्ट्रेंज थिंग इज, ही सेड, अब सदाओ कहता है, दैट इफ द मैन वर होल आई कुड टर्न हिम ओवर टू द पुलिस विदाउट डिफ़िकल्टी, कि उसको पुलिस को भी हैंड ओवर कर सकते विदाउट एनी डिफ़िकल्टी। आई केयर नथिंग फॉर हिम, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है। ही इज़ माई एनिमी, all Americans are my enemy and he is only a common fellow. You see how foolish his face is, but since he is wounded. उसने कहा कि सारे अमेरिकन मेरे दुश्मन है, लेकिन देखो ना फिर भी ये इंसान wounded है, injured है। They do not bothered about the American man, but yes, they bothered, they concerned, they are worried about the wounded man. You also cannot throw him back to the sea, Hannah said, कि आप उसको वहाँ दरिया में शी में फेंक नहीं सकते। Then there is only one thing to do, we must carry him into the house. तो फिर इसको हम कहाँ लेकर जाएंगे? हमारे हाउस में। But the servants, सदाओ inquired, लेकिन घर में तो नौकर है। सदाओ इंक्वायर करता है कि घर में तो नौकर है। We must simply tell them that we intend to give him to the police, as indeed we must. Sadao. Now Sadao gave idea that they will tell the servant that they intended to give him to the police, कि वो उसको पुलिस को दे देंगे, ऐसा वो नौकर को बोलेंगे। We must think of the children and your position. सदा ऑल्सो थिंक अबाउट द चिल्ड्रन, क्योंकि घर में बच्चे होंगे और ये इंजर्ड इंसान होगा, वो भी अमेरिकन। इट वुड एंडेंजर ऑल ऑफ अस इफ वी डिड नॉट गिव दिस मैन ओवर एज अ प्रिजनर ऑफ द वॉर। सर्टेनली, सदा एग्रीड। आई वुड नॉट थिंक ऑफ डूइंग एनीथिंग एल्स, कि एक प्रिजनर को घर में रखा है, उसको शेल्टर दिया है, सो इट विल बी डेंजरस फॉर देम ऑल, सबके लिए वो एक डेंजरस थिंग्स है। आई वुड नॉट थिंक ऑफ डूइंग एनीथिंग एल्स, और मैं उसके बारे में कुछ भी सोचता नहीं हूँ। ये सब बातें वो भविष्य में या फिर उसको रखेंगे तो क्या क्या उसको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा उसके बारे में सोचते, लेकिन पहली बात वो सोचते कि ये वाउंडेड मैन है और अभी इस इंसान को तो सिर्फ एक लुक आफ्टर की ही ज़रूरत है और कुछ भी नहीं। Thus agreed together, they lifted the man. He was very light, like a fowl that had been half starved for a long time, until it is only feathers and skeletons, so his arms hanging. They carried him up the steps and into the side door of the house. This door opened into a passage, and down the passage they carried the man towards the empty bedroom. यहाँ पर सिचुएशन बताएगी कि वो दोनों
उन लोगों को, मतलब वो जो इंजर्ड मैन था उसको लेकर घर में आती है. एंड दैट मैन वॉज लाइक अ फोल. हियर सदाव कंपेयर्स द मैन विथ हिज बॉडी विथ अ बर्ड, कि वो फोल मतलब एक कोक के जैसा हल्का पतला था और उसमें स्केलेटन और फेदर्स जैसे कुछ और कुछ भी था नहीं. ही वॉज सो लाइट, सो ही कंपेयर्स a man with foal. So they took that man into the bedroom. That bedroom was empty one, and that bedroom was belongs to Sadao's father, जो उसके पिता का था और उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं है. That is why obviously the bedroom was empty. It had been the bedroom of Sadao's father, and since his death it had not been used. They laid the man on the deeply matted floor. Deeply matted floor means matted मतलब foaming, a thick mass, wet and dirty, थोड़ा dirty भी था, वहाँ पर उसको लेटा दिया. Everything here had been Japanese to please to the old man, who would never in his own home sit on a chair or sleep in a foreign bed. इस इंसान ने कभी जापानीज फर्नीचर का यूज़ नहीं किया होगा, उसके सामने तो अमेरिकन चीज़ें होगी. तो ये रूम उसके लिए पूरा ट्रेडिशनल जापानीज ट्रेडिशन वाला रूम था, तो और उसको थोड़ी वो प्लीज़ यानी खुशी भी करेगा. हना वेंट टू द होल कबोर्ड्स एंड स्लिड ब्लैक अ डोर एंड टुक आउट अ सॉफ्ट क्विल्ट. शी हेजिटेटेड. क्विल्ट मीन्स कंफर्टर, जो पिलो होता है उसके जैसा. तो वो थोड़ा हेजिटेट हुई कि इतना अच्छा जो क्विल्ट है उसको वो एक अमेरिकन सोल्जर और प्रिजनर को देगी. द क्विल्ट वॉज कवर्ड विथ फ्लावर सिल्क एंड द लाइनिंग वॉज प्योर वाइट सिल्क. सी हेजिटेटेड टू गिव दिस क्विल्ट टू दैट मैन. और यहाँ पर क्विल्ट कैसा था, तो कवर विथ फ्लावर सिल्क एंड लाइनिंग प्योर वाइट सिल्क. सी हेजिटेटेड बिकॉज दैट मैन वॉज डर्टी. सी मर्मर्ड इन डिस्ट्रेस. डिस्ट्रेस मतलब उदास होते हुए गई थी, कितना गंदा है. यस, he had better be washed. Sadao agreed. If you will fetch hot water, I will wash him. यहाँ पर सदाओ कहता है कि yes because he is dirty, वो गंदा है, और कहता है हैना को कि कुछ हॉट वाटर लेकर आए ताकि उसको वो वॉश कर दे. I cannot bear for you to touch him, she said. Hannah does not want Sadao wash it. We shall have to tell the servant he is here. She gave the idea that servant can wash that man. I will tell Yumi now. She can leave the children for a few minutes and she can wash him. She gave the idea Sadao that Yumi will wash that man. She was just became free. Sadao considered a moment. Considered, it means that thought carefully. उस पर थोड़ी देर सोचता है. Let it be so. He agreed. You tell Yummy and I will tell the others. But the utter pallor of the man's unconscious face moved him first to stoop and feel his pulse. It was faint, but it was there. He agreed. And उसको कहता है कि तू यमी को बोल, और वो उसको दूसरों को बोलता है. But the utter pallor, pallor means उसका जो चेहरा था इंसान का, जो इंजर्ड मैन का, वो पेल हो गया था, फीका हो गया था. सो डॉक्टर सदाओ चेक द पल्सिस, उसकी वो पल्स चेक करते हैं. इट वॉज फेंट, वो अनकॉन्शियस ज़रूर था, बट द पल्सिस वर देयर. ही पुट हिज हैंड अगेंस्ट द मेन्स कोल्ड ब्रेस्ट. द हार्ट वॉज टू वॉज येट अलाइव. मतलब वो इंसान अनकॉन्शियस था, फेंट था, बट जिंदा था. सो वी पुट अवर चैप्टर हियर. ओनली वन क्वेश्चन आई एम गिविंग यू इन होमवर्क.